عورت کا جسم اختیار کرتے ہی اس نے مجھے روک کر کہا باہر مت جانا، اور میرے دل پر ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ انسانی چیخ کی بھیانک آواز نے میری اعصاب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اوپر سے ایک مردہ اور زندہ ہو کر مرتبان سے نکل کر میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ میں نے بولنا چاہا لیکن خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو گیا، اور اب بیک وقت کئی انسانوں کی چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگی تھی، اور یہ آوازیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ہماری کوٹھی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ میری پیدائش ایک ہندو گھرانے میں ہوئی تھی، اور یہ عقیدہ میرے خون میں رچ بس چکا ہے۔ ایک ہندو عورت یا مرد مرنے کے بعد اپنے کرنوں کے مطابق دوسرا جنم لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمہیں اپنی شکل دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ حقیقت میں تم ہی ہو۔ لیکن اب میں تمہیں ایک اور چیز دکھاتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اسے دیکھ کر تمہیں یقین آ جائے کہ تم آج سے 300 سال پہلے میرے خاوند تھے۔ اب وہ مجھے اس تابوت کے پاس لے گئی جو کمرے کے وسط میں چبوترے پر رکھا ہوا تھا، اور جس پر ایک زرنگار چھتری نے سایہ ڈالا ہوا تھا۔ اس نے مجھے تابوت کے پاس اپنے ساتھ کھڑا کر لیا، اور تابوت کے ڈھکن کو دونوں ہاتھوں سے ایک طرف سرکا دیا۔ ایک عجیب ڈراؤنی آواز کے ساتھ ڈھکن ایک طرف کو ہٹ گیا، اور روہنی کی بدرو نے شمع دان اٹھا کر آگے کر دیا۔ شمع کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ تابوت کے اندر کسی شہزادے کی لاش پڑی تھی، اور یہ شہزادہ میں ہی تھا۔ یہ میری ہی لاش تھی، اور میری ہی شکل تھی، اور میری ہی شکل کے نقش و نگار تھے۔ کوئی بھی دیکھ کر یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ میری ہی لاش ہے۔ مجھ پر دہشت طاری ہو گئی، اور کبھی کسی انسان نے اپنے سامنے اپنی لاش پڑی ہوئی نہیں دیکھی ہوگی۔ میں پہلا انسان تھا کہ تابوت میں پڑی ہوئی اپنی ہی لاش کو دیکھ رہا تھا، اور پھر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اور یہ بات میرے عقیدے اور عقل کے خلاف تھی، بالکل خلاف تھی۔ روہنی کہنے لگی کہ شیروان، کیا تم اپنی لاش کو بھی پہچاننے سے انکار کرو گے؟ اور خوف کے مارے میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے بڑے مشکل سے کہا کہ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ اتفاق کی بات ہو گئی ہے کہ آدمی کی شکل میری شکل سے ملتی جلتی ہے۔ روہنی نے آہ بھر کر کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی نشانی دکھاتی ہوں جسے دیکھ کر تمہیں یقین آ جائے گا کہ یہ تمہاری ہی لاش ہے۔ اس نے شمع دان تابوت کے کنارے پر رکھ دیا، اور جھک کر شہزادے کی لاش کے گردن کے گرد لپٹا ہوا کفن ایک طرف ہٹا دیا، اور کہا یہ دیکھو۔ اور میرے داہنے کان کی لو کے نیچے گردن پر سورج گرہن کا ایک سیاہ نشان تھا۔ انسانی انگوٹھے کے نشان کے برابر سورج گرہن کا یہ نشان پیدائشی تھا، اور روہنی نے مغل شہزادے کی لاش کے کفن ایک طرف ہٹا کر مجھے اس کی گردن پر کان کے نیچے دیکھنے کے لیے کہا، اور یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ میرا ہم شکل شہزادے کی لاش کے کان کے نیچے بھی سورج گرہن کا وہی نشان موجود تھا۔ اسے ہاتھ لگا کر اپنی تسلی کر لو کہ یہ تمہارا ہی نشان ہے اور اصلی ہے۔ اسے کسی نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، اور ایسا ہی نشان تمہارے کان کی لو کے نیچے بھی گردن پر موجود ہے، جو تم نے ضرور آئینے میں کئی بار دیکھا ہوگا۔ اور کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں کرو گے کہ تم ہی میرے خاوند شہزادہ شیروان ہو؟ میں نے کہا کہ میں اسے نہیں مانتا، یہ سب کچھ طلسم، جادو نگری اور نظر کا فریب ہے، ورنہ یہ لاش اب تک گل سڑ چکی ہوتی۔ کوئی انسانی لاش 300 سال تک صحیح حالت میں نہیں رہ سکتی۔ اور روہنی کی بدرو نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، اور کوئی انسانی لاش اتنے برس صحیح حالت میں نہیں رہ سکتی، اور یہ بھی اب تک گل سڑ چکی ہوتی، لیکن میں نے اسے اپنی طلسمی طاقت سے صحیح حالت میں رکھا ہوا ہے، اور صرف اس لیے کہ اگر کبھی کسی جنم میں تم مجھے مل گئے اور تمہیں میری باتوں کا یقین نہ آیا، تو میں تمہیں تمہاری لاش دکھا کر یقین دلانے کی کوشش کروں گا کہ تم ہی میرے خاوند مغل شہزادہ شیروان ہو، اور جس نے میری خاطر 300 برس بعد ایک بار پھر شہزادے شیروان کے روپ میں جنم لیا ہے۔ یہ سب بکواس ہے، اور میں نے غصے میں آ کر کہا، اور میں ایسی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں حیران ہوں کہ تم جو مسلمان ہو چکی ہو اور کس طرح ان خرافات پر یقین کرتی ہو۔
रोहिणी ने गहरा सांस लिया और बोली, मैं कैसे यकीन ना करूं जबकि मैं ये सब कुछ हकीकत के रूप में अपने सामने देख चुकी हूं और इस हकीकत को तुम भी देख रहे हो। मैंने कहा कि ये हकीकत नहीं, ये तिलस्म है, काला जादू है, नज़र का फ़रेब है और तुमने मुझे नज़र के फ़रेब में मुब्तला कर दिया हुआ है। रोहिणी ने कहा कि तुम्हारे लिए हो सकता है कि नज़र का फ़रेब हो, मगर मेरे लिए ये मेरी गुजरी हुई ज़िंदगी और आने वाले जन्मों की बहुत बड़ी हकीकत है। और अब जबकि तुम इस बात का खुद तजर्बा का हो चुका है कि तुम इस जाल में फंस चुके हो और तुम्हारी जान को हर लम्हे खतरा है, इस वजह से भी तुम इसको महज नज़र का फ़रेब कहकर उससे अलग नहीं हो सकते। रोहिणी ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर वो सब कुछ खराफात और तो हिम्मत का खेल ही था, तब भी मैं उस खेल का एक अहम किरदार बन चुका था और रोहिणी की मदद के बगैर मैं उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकता। और मैंने कहा कि अगर तुम यही चाहती हो और मैं यही समझूं कि तुम्हारे पिछले जन्म में मैं तुम्हारा खावंद रह चुका हूं और मेरा नाम शेरवान था, तो ठीक है, मैं इसे मान लेता हूं। और अब मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा। रोहिणी ने ताबूत में पड़ी हुई अपने खामद मुगल शहजादे शेरवान की लाश को एक नज़र देखा और ताबूत के ऊपर ढक्कन डाल दिया। शमादान उसने पहले उठाकर ताबूत के सरहाने की जानब चबूतरे पर रख दिया था और फिर उसने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ ये यकीन दिलाने के लिए लाई थी कि तुम मेरे खामद की आत्मा हो जो तुम्हारा रूप धार कर इस जिंदा इंसानों की दुनिया में सिर्फ मेरी तलाश में वापस आ गई है। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि हम दोनों अपने दुश्मन पुजारी रघु की बदरू के इंतकाम से कैसे हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं और मेरे साथ ऊपर आ जाओ। हम ताबूत वाले तहखाने से निकलकर किले की दूसरी मंजिल पर आ गए और रोहिणी कहने लगी, ये कभी हमारा आलीशान महल हुआ करता था और तुम्हें याद नहीं रहा। मुझे सब याद है कि हमें एक दूसरे से कितना प्यार था और हम सुबह शाम महल के बाग में हाथ डालकर टहला करते थे और अब वो बाग भी उजड़ चुका है और ये महल भी खंडर बन चुका है। आओ इस बालकोनी में चलकर बैठते हैं और वहाँ बैठकर मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर हम दोनों अपने कातल दुश्मन पुजारी रघु की दुश्मनी से निजात हासिल करके हमेशा के लिए फिर से एक हो सकते हैं। ये हमेशा के लिए एक हो जाने वाली बात पर मेरा यकीन भी नहीं था और मैं चाहता भी ना था कि ऐसा हो, और मुझे तो सिर्फ उस गैबी दुश्मन से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करना था जो मुझ पर 3-4 मरतबा कातलाना हमला कर चुका था। उस खंडर महल की बालकोनी कभी संगे मरमर की हुआ करती थी, अब उसका रंग काला पड़ चुका था और जंगली बैलों ने उसे आधे से ज्यादा डांपा हुआ था और ये बालकोनी किले या उस खंडर महल की दूसरी मंजिल पर जंगल के रुख पर थी और किले की पुरानी दीवार से बाहर को निकली हुई थी और बालकोनी की पत्थर की 2 जालियां टूट चुकी थीं। सिर्फ सामने के रुख की जालियां लगी हुई थी। फर्श सलामत था और वहां बैठने के लिए सिवाय फर्श के और कोई जगह नहीं थी। और जब हम बालकोनी में आए तो मैंने देखा कि इस दौरान आसमान बादलों में छुप चुका था और बारिश शुरू हो गई। जंगल की तरफ से बारिश में भीगी हुई बड़ी खुशगवार हवा आ रही थी। हम बालकोनी के फर्श पर ही बैठ गए। अभी रोहिणी की बदरू ने अपनी दास्तान शुरू नहीं की थी कि बारिश तेज हो गई और उसकी बौछार बालकोनी में हम पर आने लगी। मैंने देखा कि बारिश की बौछार रोहिणी बदरू पर पड़ रही थी, मगर ना उसका चेहरा गीला हुआ और ना उसकी जाफरानी साड़ी भीगी थी, और उसके बरअक्स मेरे कपड़े बारिश की बौछारों में भीगने लगे। रोहिणी ने यह देखकर कहा कि शेरवान, तुम बारिश में भीग जाओगे और मुझ पर तो बारिश का कोई असर ना होगा। चलो हम किसी और जगह चलकर बैठते हैं। और हम बालकोनी से उठ गए। मैंने रोहिणी से कहा, रोहिणी। उसने मुझे टोकते हुए कहा कि तुम मुझे रोहिणी मत कहा करो और मुझे सुल्ताना कहकर बुलाया करो। याद नहीं कि ये नाम तुमने खुद रखा था और तुम्हें बेहद पसंद था। मैंने अपने दिल में कहा कि जाने मेरी बला से मैंने तुम्हारा ये नाम कब रखा, और ऊपर से कहा ठीक है, मैं तुम्हें सुल्ताना कहकर ही बुलाया करूंगा। अब कहो कि तुम क्या कहने वाले थे।
मैंने कहा कि यहाँ इस किले में तो बैठने की कोई जगह नहीं, और तुम कहाँ बैठना पसंद करोगे? मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहां लिए चलती हूँ। मुझे याद आ गया कि रोहिणी तो एक बदरू है, वो तो जहां चाहे मुझे ले जा सकती है। और मैंने कहा कि किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहां हम सुकून के साथ बैठकर बातें कर सके, और कुछ नाश्ता वगैरह भी मैं कर लूं, और मुझे भूख लग रही है। रोहिणी हंस पड़ी और कहने लगी, शेरवान, जब मैं जिंदा थी तो तुम मेरा खामन और मैं तुम्हारी पत्नी हुआ करती थी, और तब भी तुम्हें सुबह के वक्त बड़ी भूख लगा करती, और मैंने शाही बावर्ची को हुक्म दे रखा था कि तुम्हारा नाश्ता दिन के पहले वक्त में तैयार करवाकर महल में भिजवाया करे। काश तुम्हें वह सब कुछ याद होता, लेकिन मुझे यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा और तुम पहचान लोगे, और मैं मायूस नहीं हूं। रोहिणी ने फिर वही बातें शुरू कर दी थी, और जिनसे मुझे कोई दिलचस्पी ना थी, और मैंने उसे कहा, अच्छा ये बताओ कि हम कहाँ जाएं? हम झांसी चलते हैं, वो बहुत बड़ा शहर है, और वहाँ ऐसे कई होटल हैं जहाँ तुम्हें खाने को भी बहुत कुछ मिल जाएगा, और तुम बैठना भी वहाँ पसंद करोगे। मैंने उससे कहा कि हमारे पास तो इंडियन करेंसी का 1 रुपया भी नहीं, हम नाश्ता वगैरह का बिल कहाँ से अदा करेंगे? और उस पर रोहिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल मैं अदा करूंगी, तुम उसकी फिक्र ना करो, आओ मेरे साथ। और तुम तो वापस बालकोनी में जा रही हो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, हम बालकोनी के रास्ते ही बाहर जाएंगे। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले रखा था, और हम बालकोनी में आ गए। बारिश मूसलाधार हो रही थी, और बारिश की बौछारें हम दोनों पर पड़ रही थी, मगर मैं ये देखकर हैरान हुआ कि बारिश में बिल्कुल नहीं भीग रहा था। और मैं बारिश में क्यों नहीं भीग रहा सुल्ताना? और वो कहने लगी, जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहेगा तुम बारिश में नहीं भीगोगे। तैयार हो जाओ, हम झांसी जा रहे हैं। और ये कहकर उसने मेरे हाथ को जरा सा खींचा, और हम बालकोनी से प्रवास कर गए। हम मूसलाधार बारिश में जंगल के दरख्तों के ऊपर से होकर उड़ रहे थे, और ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा तजर्बा था कि जिसे मैं मरते दम तक फरामोश ना कर सकूंगा। मैंने परिंदों को बारिश में उड़ते देखा, मैंने हवाई जहाज को बारिश में परवाज करते देखा, लेकिन कभी किसी इंसान को बारिश में परवाज करते नहीं देखा था। और यहाँ मैं खुद बारिश में जमीन से न जाने कितने फुट की बुलंदी पर दरख्तों के ऊपर परवाज कर रहा था। और दूसरी हैरत अंगेज बात यह थी कि बारिश की बौछारें मुझ पर पड़ रही थी, मगर मैं बिल्कुल नहीं भीग रहा था। खुदा जाने हमारी रफ्तार कितनी थी, और हम बहुत जल्द जंगल के ऊपर से गुजरकर खेतों पर आ गए। मैंने नीचे देखा, और नीचे मुझे एक रेलवे लाइन नजर आई जो बारिश में भीग रही थी, और उस वक्त हम जमीन से ज्यादा 50 फुट की बुलंदी पर उड़ रहे थे। और रोहिणी ने कहा कि यह बम्बई बड़ौदा रेलवे लाइन है, और भोपाल से झांसी की तरफ जाती है। हमारी रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई, और क्योंकि हमारे नीचे से रेलवे लाइन के साथ साथ खड़े दरख्त और रेलवे लाइन के सिग्नल बड़ी तेज़ी से पीछे की तरफ जा रहे थे, और इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ प्रवास करने की वजह से हवा के तूफ़ानी थपेड़े हमें लगने चाहिए थे, मगर हमें सिर्फ उतनी हवा लग रही थी कि रोहिणी के लंबे बाल पीछे की जानब उड़ रहे थे, और हवा सिर्फ मुझे छू कर गुजर रही थी। हम झांसी शहर की फदाई हदूद में दाखिल हो गए। झांसी शहर अभी अपनी असली वादा कथा में ही था, और शहर के बाहर मॉडर्न कॉलोनियां आबाद नहीं हुई थीं। आबादी भी नहीं बड़ी थी, और शहर के इर्द गिर्द एक खूबसूरत बाग था, और वहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने का एक होटल था जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा। उस होटल में अमीर लोग आकर ठहरा करते, या फिर यूरोप से आए हुए अंग्रेज़ लोग आकर ठहरते। बारिश की वजह से सड़कों पर रश बिल्कुल नहीं था, और बाग तो खाली पड़ा था। हम बाग के कोने में उतर गए, और मैंने सुल्ताना से कहा, तुम मेरे साथ इंसानों के दरमियान जा रही हो, और जो मेरी तरह जिंदा हैं, और क्या तुम उन्हें नजर आओगी या उनकी नजरों से गायब होगी? रोहिणी कहने लगी, और मैं उन्हें उसी तरह नजर आऊंगी जैसे जिस तरह तुम मुझे देख रहे हो, और मुझे उनके सामने गायब होने की क्या जरूरत है? और फिर नाश्ता करने के बाद हम वहां से उठकर किसी दूसरी जगह जंगल में चले जाएंगे। अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ आलीशान होटल वहां से चंद कदम के फासले पर था, और उसकी लॉबी पर पड़ा हुआ रंग बिरंगा साइबान दूर से नजर आ रहा था। और रोहिणी कहने लगी,
हम इस होटल में बैठकर बातें करेंगे और तुम यहाँ नाश्ता भी कर लेना। हम बारिश ही में होटल की जानब चल पड़े और रोहिणी ने अभी तक मेरा हाथ पकड़ रखा था और जिसकी वजह से मैं बारिश में नहीं भीग रहा था। मैंने कमीज पतलून पहन रखी थी, मगर रोहिणी बड़े खूबसूरत लिबास में थी। अपने गले का कीमती हार और सर पर रखा हुआ था जवाहरात का ताज, और उसने किले में गायब कर दिया था, इसलिए उसे इस शाहाना ताज में देखकर ख्वाब ख्वाब लोगों की नजरों में आ सकती थी और जो वो ना चाहती थी। पुरानी तर्ज का होटल था। खुले कमरे में जगह जगह गोल मेज कुर्सियां लगी हुई थी। हर मेज पर फूलों वाला गुलदान पड़ा था। कुछ खुश लिबास लोग बड़ी खामोशी से कहीं कहीं बैठे नाश्ता कर रहे थे। हम भी एक मेज के पास जाकर बैठ गए। सुर्ख वर्दी वाला बेरा आया तो मैंने उसे नाश्ता लाने को कहा और वो चला गया। तो मैंने रोहिणी से पूछा, क्या तुम्हें कभी भूख नहीं लगती? रोहिणी मुस्कुराने लगी, नहीं। और मैंने कहा कि इसका मतलब है कि तुमने 300 साल से कुछ नहीं खाया। नहीं, ऐसी बात भी नहीं। अगर कहीं कुछ खाना पड़ जाए तो खा भी लेती हूँ, लेकिन खाने पीने की मोहताज नहीं। और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इंसानी जिस्म में ज़ाहिर हुई हूँ, वरना मैं एक रूह हूँ, आत्मा हूँ, जो अपने गुनाहों का कुफारा अदा करते हुए ज़मीन और आसमान के दरमियान भटक रही है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि एक हिंदू घराने में पैदा हुई और औरत का दूसरा जन्म उसी इंसानी रूप में हुआ है, और मुझे उस जन्म में अपना खामंद शिरवान मिल गया है। मैंने अपने दिल में कहा कि मुझे तो तुम भूल जाओ, और जब मुझे यकीन हो गया कि अब पुजारी रघु की बदरू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी और मैं फौरन तुमसे अलग हो जाऊंगा। बैरा खामोश कदमों से नाश्ते का ट्रे लेकर आ गया और मैं नाश्ता करने लगा। रोहिणी ने अपने लिए काफी की एक प्याली खुद ही बना ली और खामोशी से पीने लगी। वो मेरी तरफ देख रही थी और कहने लगी, शेरवान, तुम्हारे कपड़े बहुत पुराने हो चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ किसी दुकान से नए रेडीमेड कपड़े खरीद लो। और मैंने कहा कि उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, और वो बोली, उसकी तुम फिक्र क्यों करते हो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। और मैं ज़हर लब मुस्कुराते हुए अपने लिए काफ़ी बनाने लगा। हम जिस मेज़ पर बैठे थे वो हाल कमरे के कोने में थी और हमारे इर्द गिर्द की मेज़ें खाली थी। मैंने काफ़ी पीते हुए उससे पूछा, सुल्ताना, तुम्हारी जिंदगी की तकरीबन सारी कहानी तुम्हारी जुबानी मुझे मालूम हो चुकी है, और मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे दुश्मन पुजारी रघु ने तुम्हें कत्ल क्यों किया था। उसने बड़ी खामोशी से मेरी बात सुनी और फिर काफी की प्याली आहिस्ता से मेज पर रख दी और एक हाथ से अपनी जाफरानी साड़ी का पल्लू सीने पर दुरुस्त करते हुए बोली, पुजारी रघु हमारी छोटी सी रियासत का शाही पुजारी था। मेरी माता जी मुझे गीता और वेदों की तालीम दिलाने के लिए पुजारी रघु के पास शाही मंदिर में भेज दिया करते थे, और उस जमाने में मेरी उम्र 10-12 साल की थी। मैं बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी और पुजारी रघु मुझसे मोहब्बत करने लगा। और फिर जब मैं जवान हुई तो मुझे सूबेदार और रियासत के हुक्मरान के बेटे शहजादे शेरवान से मोहब्बत हो गई और हम दोनों छुप छुप कर मिला करते। पुजारी रघु को यह बात सख्त नागवार गुजरी, मगर वो शहजादा शेरवान के बाप का मुलाजम था। मेरे खिलाफ सवाए उसके कुछ नहीं कर सकता था, और उसने माता जी से मेरी शिकायत कर दी कि मैं एक हिंदू ब्राह्मण लड़की हूँ और मुसलमान शहजादे से छुप छुप कर मुलाकातें करती हूँ। माता जी ने मुझे मना किया, मगर मैं शहजादे शेरवान की मोहब्बत में सब कुछ भुला चुकी थी। मेरे पिताजी स्वर्गयाश होकर हो चुके थे, जो मुगल सूबेदार के वजीर थे, और मैं शहजादा शेरवान से छुप छुप कर मिलती रही। और फिर ऐसा हुआ कि शेरवान के वालिद का इंतकाल हो गया और शेरवान रियासत का हुक्मरान हो गया। सूबेदार बनते ही उसने मुझसे शादी कर ली और मैं शादी के बाद मुसलमान हो गई। एक तो मैंने शेरवान से शादी कर ली और दूसरा मैंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था, और पुजारी रघु मेरा जानी दुश्मन बन गया। दर पर्दा मुझे कत्ल करने की साजिशें करने लगा, मगर शहजादा शेरवान के होते हुए वो कुछ नहीं कर सकता था। मगर मुकद्दर में जो लिखा होता है उसे कौन टाल सकता है। मेरा खामद और महबूब शहजादा शेरवान कुछ रोज बीमार रहने की वजह से चल बसा और मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। माता जी पहले ही स्वर्गवास हो चुकी थी। अगरचे मैंने रियासत का तख्त संभाल लिया था, मगर मैं आखिर एक कमजोर औरत थी और अपने दुश्मन पुजारी रघु की साजिशों का अकेली मुकाबला नहीं कर सकती थी। फिर ऐसा हुआ कि एक रात मुझे
अपनी ख्वाबगाह में मैं सो रही थी कि 4 हबशी गुलाम ख्वाबगाह में दाखिल हुए और मुझे जबरदस्ती उठाकर किले के उस तहखाने में ले गए जहां तुमने मुझे कत्ल होते देखा था, और वहां मुझे चबूतरे पर बांध कर लिटा दिया गया। पुजारी रघु के हुक्म से मुझे कत्ल कर दिया गया, और मुझे कत्ल करने के बाद उसने अपनी तिलस्मी ताकत से मेरी आत्मा को एक मर्तबान में बंद करके मर्तबान चबूतरे के शवगाह में दफन कर दिया, ताकि मैं मरने के बाद किसी जन्म में भी दुनिया में वापस ना आ सकूं, और यूं मेरी आत्मा को कभी निर्वाह नसीब ना हो। और मेरे कत्ल के मंजर को तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। मैंने उसकी बात काट कर पूछा, उस मंजर की हकीकत क्या थी? और उन्हीं की बदरू ने कहा, और मेरे कत्ल के 15-20 साल बाद पुजारी रघु भी मर गया, और मरने के बाद उसकी रूह ने एक बदरू की शक्ल इख्तियार कर ली, क्योंकि उसने एक जिंदा इंसान को कत्ल किया था, जो बहुत बड़ा पाप है। अब ऐसा होता है कि हर साल ठीक उसी दिन और उसी वक्त आधी रात को जब मुझे रघु के हबशी गुलामों ने कत्ल किया था, रघु की बदरू उन गुलामों की बदरू के साथ किले के महल में ज़ाहिर होती है, और पुजारी रघु की बदरू अपने जबरदस्त जादू के असर से मेरी आत्मा को वापस लाकर मेरे जिस्म में दाखिल करता, और मेरे कत्ल का भयानक मंजर एक बार फिर दोहराया जाता। या ये तो पुजारी रघु के ज़मीर को उसके गुनाह की सजा मिल रही थी, या पुजारी रघु की बदरू मुझे एक बार फिर कत्ल करके तस्कीन हासिल करती थी। बहरहाल ये मंजर वीरान किले के अंदर हर साल एक खास रात को दोहराया जाता, और मुझे इसी तरह हबशी गुलाम कत्ल करते, और फिर पुजारी रघुवीर की बदरू मेरी आत्मा को मर्तबान में बंद करके चबूतरे के शगाफ में दफन कर देती। उसके तिलस्मी मंत्रों के असर से मेरी आत्मा का आवागोन का चक्कर रुक गया। अगर आवागोन का चक्कर चलता रहता और मैं अपने हिंदू अकीदे के मुताबिक, अपने अच्छे बुरे कर्मों के मुताबिक एक जन्म से दूसरा जन्म लेती रहती, तो मैं उम्मीद कर सकती थी कि कभी न कभी मेरे बुरे अमाल की सज़ा ख़त्म हो जाएगी और मुझे जन्म जन्म के चक्कर से निजात मिल जाएगी। लेकिन मेरे दुश्मन और मेरे कातिल पुजारी रघु ने मेरी आत्मा को मर्तबान में बंद करके मेरी आत्मा की तरक्की का रास्ता बंद कर दिया, और मेरी आत्मा मर्तबान में हमेशा के लिए कैद होकर रह गई। लेकिन आखिर मेरे महबूब शहजादे की रूह को मुझ पर रहम आ गया, और उसने मेरी निजात के लिए तुम्हें अपने रूप में बदल कर किले में भेज दिया। और ये वही मनहूस रात थी जिस रात को 8 से 300 वर्ष पहले मुझे कत्ल किया गया था। तुमने किले की गैलरी में छुप कर मुझे कत्ल होते और फिर कातिल रघु को मर्तबान में मेरी आत्मा को बंद करके चबूतरे के अंदर दफन करते देखा। चौंका मेरे महबूब शहजादे, शेरवान की रूह ने तुम्हें मेरी निजात के लिए भेजा था, इसलिए तुम्हारे दिल में ख्याल आया कि देखा जाए कि कातिल पुजारी रघु ने मर्तबान में क्या चीज बंद करके मर्तबान को दफन किया। और जब मुझे कत्ल करने का खूंदी मंजर खत्म हो गया और पुजारी रघु और हबशी गुलामों की बदरूहें गायब हो गई, तो तुम गैलरी से उतर कर चबूतरे के पास आए और तुमने चबूतरे की ईंटें उखाड़ कर मर्तबान बाहर निकाला। मेरी आत्मा मर्तबान के अंदर कैद अपनी मोहब्बत की ताकत के ज़ाहिर असर ये सब कुछ देख रही थी, और फिर तुमने मर्तबान खोल दिया। मर्तबान के खुलते ही मेरी आत्मा कातिल पुजारी रघु के मनहूस तिलस्म की कैद से आज़ाद हो गई, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसे तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हारे रूप में अपने महबूब शहजादे शेरवान को पहचान लिया था, लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना। उसके बाद मेरे सामने जो सबसे बड़ा मसला था वो ये नहीं था कि तुम मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ, और ये कि सब कुछ बाद में भी हो सकता था। और उस वक्त मेरे सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि कातिल पुजारी रघु से तुम्हारी जान कैसे बचाई जाए। तुमने मेरी आत्मा को आज़ाद कर दिया था, और पुजारी रघु मेरे साथ अब तुम्हारा भी दुश्मन हो गया, और मुझे मालूम था कि वह मुझे तो इतनी आसानी से दोबारा अपने तिलस्म के चक्कर में कैद नहीं कर सकेगा, लेकिन तुम्हें बड़ी आसानी से हलाक कर देगा। बस उसके बाद मेरे फर्ज और मेरी मोहब्बत का तकाजा यही था कि तुम्हें पुजारी रघु के हर कातिलाना हमले से बचाया जाए। चुनाचा जब भी पुजारी कातिल ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और मैंने ऐन वक्त पर पहुंचकर उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया, और ये सिलसिला उस वक्त से लेकर जब तुमने मेरी आत्मा को रघु की कैद से आज़ाद किया था इस वक्त तक जारी है।
और मैंने पूछा, और ये मनहूस सिलसिला कब तक जारी रहेगा? रोहिणी ने कहा कि मैं तुम्हें यही बताने के लिए अपने साथ लाई हूं कि तुम्हें कैसे इस खूनी चक्कर से निकाला जा सकता है। मैंने बेचैनी से कहा कि मैंने तुम्हारी राम कहानी सुन ली। अब खुदा के लिए जल्दी से ये बताओ कि मैं इस मनहूस चक्कर से कैसे आजाद हो सकता हूँ। रोहिणी काफी बना रही थी और कहने लगी, यहाँ से मैं तुम्हें अपने साथ बदरूहों की दुनिया में ले जा रही हूँ, और तुम एक बदरूही ने मेरा जीना हराम कर दिया है, और बदरूह में जाकर खुदा जाने मेरा क्या हाल होगा। और रोहिणी ने ठंडी आह भरी और बोली, मैं बुरी आत्मा नहीं हूँ, और ये तुम इसलिए कह रहे हो कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। तुम मेरे महबूब शहजादे के रूप में जरूर हो, मगर चौंका मेरा महबूब शेरवान मुसलमान था, इसलिए ये उसका दूसरा जन्म नहीं है। मुसलमानों में कोई आवागौन नहीं होता। अगर मैंने किसी मुसलमान घराने में जन्म लिया होता तो मैं भी आवागौन के चक्कर से आज़ाद होती। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि अगरचे मैं मुसलमान हो गई थी, लेकिन मेरा जन्म हिंदू माता पिता के मुलाप से हुआ था, और आवागौन मेरे साथ ही मेरी रूह में दाखिल हो गया। लेकिन शहजादा शेरवान का जन्म एक मुसलमान माता पिता से हुआ था, और उसका कोई दूसरा जन्म नहीं था। लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करता था, और मौत के बाद भी उसे मेरा एहसास था। चुनाचा उसने तुम्हें अपना रूप देकर मेरी मदद के लिए भेज दिया। वो मेरे लिए यही कर सकता था, और उसका इतना करना ही मेरे लिए बहुत है। अब मैं तुम्हारे सामने इस बात का एतराफ़ करती हूँ कि हकीकत में तुम मेरे महबूब शहजादे शेरवान नहीं हो, और ये शेरवान का दूसरा जन्म नहीं। अगर ऐसा होता तो जिस तरह मैंने तुम्हें पहचाना था, तुम भी मुझे देखते ही पहचान लेते। तुमने ठीक कहा था कि तुम्हारी शक्ल शहजादे शेरवान से मिलती जुलती है, लेकिन ये भी हकीकत है कि तुम्हारे दिल में मर्तबान खोलकर मेरी आत्मा को आज़ाद करने का ख्याल मेरे महबूब शेरवान की रूह ने ही तुम्हारे दिल में डाला था। मैं रोहिणी की काफ़ी दास्तान सुन चुका था, और मैंने कहा, सुल्ताना, तुम मुख्तसर लफ्ज़ों में मुझे ये बताओ कि तुम मुझे अपने साथ बदरूहों की दुनिया में ले जा रही हो, और क्या बदरूहों की दुनिया से मैं जिंदा वापस आ सकूंगा? रोहिणी ने इसके जवाब में कहा, तुम वहां मेरे साथ जाओगे, किसी बदरूह को यह हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हें हाथ भी लगा सके। और मैंने उससे एक बड़ा अहम सवाल पूछा, लेकिन कातिल पुजारी रघु की बदरूह भी वही होगी, और वो मेरी दुश्मन बदरूह है, और क्या वो मुझे बदरूहों की दुनिया से जिंदा वापस जाने देगी? बदरूहों की जिस दुनिया में मैं तुम्हें ले जा रही हूँ, पुजारी रघु का उस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। उसकी बदरूहों की दुनिया दूसरी है, और वो किसी और बदरूहों की दुनिया का सरदार है। फिर मैं तुम्हें गायब करके अपने साथ ले जाऊंगी। और उतने में होटल का बावर्दी बैरा करीब से गुजरा तो रोहिणी ने उसे बुलाकर कहा, नाश्ते का बिल ले आओ। मैं रोहिणी का मुंह तकने लगा कि ये बिल कहाँ से अदा करेगी, और जब बैरा चला गया तो रोहिणी मेरे दिल की बात समझते हुए बोली, इस वक्त झांसी शहर के ऊपर और ज़मीन के अंदर दौलत के जितने खजाने हैं, मैं उन सबको देख सकती हूँ, और ये अलग बात है कि उन्हें हासिल करने के लिए हम बदरूहों को भी एक अखलाकी ज़ाब्ते की पाबंदी करनी पड़ती है। रोहिणी ने ज़ाफ़रानी साड़ी के नीचे उसी रंग का ब्लाउज पहन रखा था, और उसके हाथ में कोई पर्स वगैरह भी नहीं था। मेरा ख्याल था कि शायद वह अपने ब्लाउज के अंदर से कुछ रुपए निकालेगी, लेकिन उसने एक लम्हे के लिए अपने हाथ के ऊपर अपनी साड़ी का पल्लू डाल दिया, और दूसरे लम्हे उसने पल्लू हटाकर अपना हाथ खोला तो उसके हाथ में इंडियन करेंसी के 100 रुपए के नोटों की एक गुड्डी थी। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए ज़्यादा मुद्दत नहीं हुई थी, और अभी 100 रुपए के नोट की बड़ी कीमत हुआ करती थी। बैरा बिल लेकर आ गया, और बड़ा महंगा होटल था, मगर नाश्ते का बिल 60 रुपए ही बना। रोहिणी ने उसकी प्लेट में 100 रुपए का नोट रख दिया, और बैरा चला गया तो वह मेरी तरफ देखकर कहने लगी, यहाँ से चलकर तुम्हें अपने लिए नए सूट खरीदने होंगे, और ये कपड़े बड़े गंदे हो चुके हैं। और उसके पास बहुत से रुपए थे, मैं जो चाहे खरीद सकता था। बैरा बाकी पैसे लेकर आया तो रोहिणी ने कहा, और ये तुम्हारा इनाम है, तुम रख लो। बैरा ने खुश होकर सलाम किया और चला गया। हम उठने ही वाले थे कि मैंने देखा कि एक आदमी 3 पुलिस वालों के सिपाहियों के साथ हमारी तरफ आया, और पहले तो मैं यही समझा कि वो किसी दूसरी खाली मेज की तरफ जा रहा है, लेकिन जब वो हमारे पास आकर रुक गया तो मैंने और रोहिणी ने उसकी तरफ ताज्जुब से देखा। गहरे सांवले रंग का वो आदमी कमीज पतलून में था, और चेहरे पर करख्तगी थी।
तीनों सिपाही राइफल लिए हुए थे और सिपाही हमारे दाएं बाएं आकर खड़े हो गए, जैसे उन्होंने हमें घेरे में ले लिया हो। और मैंने उस आदमी से पूछा, क्यों जनाब, क्या बात है? उस आदमी ने मेरी और रोहिणी की तरफ देखते हुए कहा कि तुम दोनों पाकिस्तानी जासूस हो और गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल हुए हो और मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। फिर उसने सिपाहियों से कहा कि इन्हें हथकड़ियां लगाकर थाने ले चलो। और मैंने कहा, हम पाकिस्तानी जासूस नहीं हैं भाई। तो फिर कौन हो? हम हिंदुस्तान के ही रहने वाले हैं और इज्जतदार लोग हैं, और आपको हमारे साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, और मुझे किस तरह बात करनी चाहिए ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। बेहतर यही है कि तुम दोनों खामोशी से मेरे साथ थाने चले चलो, वरना मुझे दूसरी तरह ले जाना भी आता है। और मैं कुछ कहने लगा तो रोहिणी ने मुझे रोक दिया और उस पुलिस के आदमी से कहा, ठीक है भाई साहब, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। और मैंने रोहिणी से कहा, यह कैसे हो सकता है सुल्ताना? पुलिस के आदमी ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुसलमान हो और पाकिस्तान से यहाँ जासूसी करने आए हो और तुम्हारे पास कोई वीजा पासपोर्ट नहीं। उसने सिपाहियों से कहा कि गिरफ्तार कर लो इन्हें और थाने ले चलो। सिपाहियों ने हमें यानी मुझे और रोहिणी को हथकड़ियां लगा दी। मैं हैरान था कि रोहिणी ने जरा भी मज़ाहमत नहीं की और हाल में बैठे हुए दूसरे लोग हमें हैरानी और तज्जुब से देख रहे थे। हम सिपाहियों के साथ चल पड़े और एक सिपाही ने हमारी हथकड़ियों की लोहे की जंजीर थाम रखी थी और दूसरे दोनों सिपाही हमें घेरे में लेकर साथ साथ चल रहे थे और राइफलें उन्होंने इस तरह पकड़ रखी थी कि जैसे हमें भी शूट कर देंगे। मुझे रोहिणी की बदरू पर बहुत गुस्सा आया कि हमें सब लोगों के सामने हथकड़ियां लग गईं और वह अपनी गैबी ताकत के बावजूद ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। लेकिन बाद में उसने मुझे बताया कि जिस बड़े मकसद को हासिल करने के लिए हम अपनी मुहिम पर रवाना होने वाले थे, उसकी खातिर हमें अपनी इज्जत की थोड़ी सी कुर्बानी देनी जरूरी थी। अगर हम ऐसा ना करते तो पहले कदम पर ही हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते थे। और उसके ये बात बाद में भी मेरी समझ में नहीं आई। बहरहाल वो एक खास वक्त के गुजर जाने का इंतजार करती रही और जब वो वक्त गुजर गया तो रोहिणी की बदरू की गैबी ताकत हरकत में आ गई। उस वक्त हम पुलिस की गाड़ी में बैठे पुलिस स्टेशन जा रहे थे और हमें हथकड़ियां लगी हुई थी। मसला सिपाही हमारी निगरानी कर रहे थे और सिविलियन कपड़ों वाले सांवले रंग का पुलिस अफसर अगली सीट पर बैठा थोड़ी थोड़ी देर के बाद गर्दन मोड़कर हमें देख लेता और इतने में रोहिणी ने पुलिस अफसर से कहा, गाड़ी रोक दो। पुलिस अफसर ने गर्दन मोड़कर ऐसे रोहिणी की तरफ देखा जैसे उसने कोई अहमकाना बात की हो और रोहिणी ने दोबारा कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जो मैं कह रही हूं वही करो, गाड़ी रोक दो। पुलिस अफसर ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उसका रोहिणी की तरफ कर दिया और बोला, खामोशी से बैठी रहो, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। यही तो मुसीबत है कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। अगर जानते होते तो कभी हमारे पास ना आते। और अब भी मैं तुम्हें मोहलत देती हूं कि गाड़ी रोक दो और हम तुम्हें कुछ कहे बगैर यहां से उतर जाएंगे। गाड़ी झांसी की किसी सड़क पर दौड़ती चली जा रही थी और सिपाही एकदम चौकस हो गए और उन्होंने राइफलों का रुख हमारी तरफ कर दिया। पुलिस अफीसर ने सिपाहियों को डांटते हुए कहा, क्या देख रहे हो, इस औरत का मुंह नोच लो। रोहिणी ने पहला काम यह किया कि फौरन मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद जैसे ही एक सिपाही ने रोहिणी का मुक्का मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया और उसका हाथ वहीं का वहीं रह गया। सिपाही पत्थर के बुत की तरह उसी हालत में साकत हो गया और पुलिस अफीसर ने चिल्लाकर दूसरे सिपाहियों से कहा, मार मार कर इस औरत की चमड़ी उधेड़ दो। दूसरे सिपाहियों ने रोहिणी को पीटने के लिए हाथ उठाए तो वो भी अपनी अपनी जगहों पर पत्थर के बुतके बन गए और गाड़ी के दचकों के साथ आगे को गिर गए। पुलिस अफीसर ने यह हमाकत की कि पिस्तौल से रोहिणी पर फायर कर दिया और रोहिणी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पुलिस अफीसर के कपड़ों में उसी वक्त आग भड़क उठी और उसकी चीखें बुलंद होने लगी। ड्राइवर ने फौरन गाड़ी खड़ी कर दी और उसके साथ ही मैं भी रोहिणी के साथ ही गायब हो गया। गायब होने के बाद हम गाड़ी से 100-150 गज के फासले पर दोबारा इंसानी जिस्म में ज़ाहिर हो गए। हमारी हथकड़ियां गायब हो चुकी थी। हम पुलिस की गाड़ी की तरफ देख रहे थे और जिसमें हमारे देखते ही देखते एक जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी की जगह शोले ही शोले नजर आने लगे। मुझे उन लोगों पर तरस आने लगा और अगर उन्हें हम पर किसी किस्म का कोई शक हो गया था तो इसमें उनका इतना कसूर नहीं था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता।
میں نے روہنی سے گلا امیز لہجے میں کہا، سلطانہ، تمہیں انہیں ہلاک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ روہنی کی بدرو نے پہلی بار میری طرف غضبناک نظروں سے دیکھا اور کہا، تم ان باتوں میں آئندہ دخل مت دینا، اور وہ پولیس گاڑی کے شولوں کو دیکھنے لگی۔ وہاں کچھ لوگ جمع ہو گئے اور جو سڑک کی مٹی اٹھا اٹھا کر شولوں پر ڈال کر انہیں بجھانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ روہنی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہنے لگی، چلو ایک دکان پر چل کر تمہارے لیے کپڑے خریدتے ہیں۔ اور روہنی آج سے 300 سال پہلے جھانسی کے صوبے کی ملکہ کی حیثیت سے رہا کرتی تھی، مگر وہ آج کی جھانسی شہر سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کون سی چیز کہاں سے مل سکتی ہے۔ وہ مجھے شہر کے گنجان علاقے کی ایک بہت بڑی دکان میں لے گئی، جہاں عورتوں، مردوں اور بچوں کی ریڈی میڈ کپڑے فروخت ہوتے تھے، اور میں نے اپنے لیے ایک ہلکے رنگ کی نئی پتلون اور جیکٹ خرید کر وہیں پہن لی۔ میرے پرانے کپڑے واقعی اب اس قابل نہیں رہے تھے کہ میں انہیں پہنتا، اور بارش بہت دیر پہلے ہی رک چکی تھی۔ جھانسی شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا، ٹھنڈ ہوا چلنے لگی، اور ہم شہر کے گنجان بازاروں سے نکل کر ایک کھلی سڑک پر آ گئے۔ روہنی میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی چال میں مہارانیوں والا وقار تھا، اور اس کے گلے کا ہار اور سر کا چھوٹا سا تاج ابھی تک غائب تھا۔ اور میں نے اس سے پوچھا، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے اپنا محل میں جاؤں گی، اور وہاں میں تمہیں ایک نئی چیز دکھانا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد ہم وہیں سے بدروحوں کی دنیا کی طرف پرواز کر جائیں گے۔ ہم کتنی دیر میں بدروحوں کی دنیا میں پہنچیں گے؟ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر آ گئی اور جہاں آس پاس کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، اور کہنے لگی، تم ہماری دنیا کے فاصلوں کا انسانوں کے بنائے ہوئے پیمانوں سے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تم یوں سمجھ لو کہ اگر فضا میں 5000 میل فی گھنٹے کے حساب سے 1000 سال تک سفر کرتے رہو تو تم بدروحوں کی دنیا میں پہنچو گے۔ اور میں نے حیران ہو کر کہا، اور ہم کتنی مدت میں پہنچیں گے؟ میرے ساتھ پرواز کرتے ہوئے جب تم بدروحوں کی دنیا میں پہنچو گے تو تم ایسا محسوس کرو گے جیسے تم نے ابھی سفر شروع کیا تھا اور ابھی پہنچ گئے۔ اور روہنی بدروح کی یہ باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، لیکن اپنی نجات کے لیے مجھے اس کے ساتھ جانا ہی پڑا۔ اور اندر سے مجھے یہ سوچ کر ضرور ڈر گیا تھا کہ اگر یہ حسین و جمیل بدروح واقعی مجھے اتنی دور لے جا رہی ہے تو کیا میں وہاں سے واپس آ سکوں گا؟ اگر کسی وجہ سے میں وہاں رہ گیا تو میرا کیا حشر ہوگا؟ اور یہ سوچ کر ہی میرا دل بیٹھنے لگا، اگر مجھے منحوس پجاری رگو کی بدروح کے اپنے اوپر پے در پے قاتلانہ حملوں کا تلخ تجربہ نہ ہو چکا ہوتا تو میں روہنی کی بدروح کے ساتھ ایک قدم بھی نہ چلتا۔ لیکن یہ میری مجبوری تھی، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم فضا میں بلند ہو گئے۔ روہنی کا ویران قلعے والا محل وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم بڑی جلدی قلعے کی چھت پر اتر گئے، اور وہ مجھے نیچے قلعے کے اس عصیب زدہ کمرے میں لے آئی جہاں اس کے مرحوم خاوند اور میرے ہم شکل مغل شہزادے شیروان کی لاش تابوت میں بند پڑی تھی۔ شمعدان کی موم بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ روہنی نے بجھی ہوئی موم بتیوں کو باری باری اپنی انگلی سے چھوا اور وہ روشن ہو گئیں۔ اس نے شمعدان اٹھا کر تابوت کے سرہانے ایک طرف رکھ دیا، اور اس کے بعد اس نے تابوت کے ڈھکنے کو ایک طرف سرکا دیا۔ موم بتیوں کی روشنی تابوت میں پڑی تو میں نے دیکھا کہ جہاں رات کے وقت میں نے روہنی کے مرحوم خاوند شیروان کی لاش دیکھی تھی، اور وہاں اب چند ایک انسانی ہڈیوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اور میں نے روہنی سے پوچھا، شہزادے شیروان کی لاش تو رات کے بالکل صحیح حالت میں تھی، اور پھر یہ اتنی جلدی ہڈیوں کا ڈھانچہ کیسے بن گئی؟ روہنی کی بدروح نے اداس آواز میں کہا، رات جب تم نے میرے محبوب شہزادے شیروان کی لاش دیکھی تھی تو اس وقت میں تمہیں 300 سال پیچھے لے گئی تھی، اور جب تم لاش کو دیکھ رہے تھے تو اسے تابوت میں بند کیے صرف 2 ہی دن گزرے تھے، اور یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں تمہارے ہم شکل شہزادے شیروان کا چہرہ اور اس کی گردن کا سورج گرہن کا نشان دکھانا چاہتی تھی، تاکہ تمہیں میری بات کا یقین آ جائے کہ میرے مرحوم شہزادے نے تمہیں اپنا روپ دے کر میری مدد کے لیے قلعے میں بھیجا تھا، ورنہ میری اتنی طاقت نہیں کہ میں مردہ ہڈیوں میں جان ڈال کر اسے پھر سے انسانی شکل دے سکوں۔ پھر وہ تابوت پر جھک گئی۔ اس نے شہزادے شیروان کی کھوپڑی کو اٹھا لیا، اور اس وقت روہنی یعنی سلطانہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور اس نے ٹھنڈا سانس بھر کر کھوپڑی کے ماتھے کو چوم لیا،
اور اس کے بعد اس نے کھوپڑی کے اندر ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر سیاہ نگ جڑا ہوا تھا۔ روہنی نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ شہزادے کی کھوپڑی کو اسی جگہ تابوت کے اندر رکھ دیا جہاں سے اسے اٹھایا تھا، اور پھر تابوت کو بند کر کے شمع دان کے قریب ہو کر اس نے انگوٹھی پر ایک نظر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھا اور کہا، اپنا ہاتھ آگے کرو۔ میں نے اپنا بائیں ہاتھ آگے کر دیا۔ اس نے سیاہ نگینے والی انگوٹھی میری انگلی میں ڈال دی اور کہنے لگی، یہ انگوٹھی تمہیں بدروحوں کی دنیا میں وہاں کے عصیب سے محفوظ رکھے گی، اور انسانوں کی دنیا میں تم پر دشمن پجاری رگو کے بڑے سے بڑے تلسمی منتر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اس انگوٹھی کو اس وقت تک اپنے ہاتھ میں ہی رکھنا جب تک کہ ہم اپنے دشمن پجاری رگو سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل نہیں کر لیتے اور میری بدروح کو دنیا میں در بدر بھٹکتے رہنے سے نجات نہیں مل جاتی۔ میں نے کہا، اور میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ یہ انگوٹھی میرے پاس ہی رہے، لیکن اگر کسی وجہ سے یہ مجھ سے گم ہو گئی یا پجاری رگو اپنی جادو کی طاقت کے زور سے یہ مجھ سے چھین کر لے گیا تو پھر کیا ہوگا؟ روہنی نے کہا کہ پھر تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہو، کیونکہ میں انسانوں کی دنیا میں کسی وقت تمہاری مدد کو بھی نہیں پہنچ سکتی، اور جب دشمن پجاری رگو سے انسانوں کی دنیا میں ہماری کھلی جنگ شروع ہو جائے گی تو اپنے تلسمی منتروں کا وار مجھ پر بھی کرے گا، اور اس کی بدی کی طاقت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر میں ذرا سی دیر پلک جھپکنے کے وقفے جتنی دیر کے لیے بھی غائب ہو جاؤں تو پجاری رگو اپنے تلسم کی طاقت سے فوراً مجھے اپنے قبضے میں کر سکتا ہے، اور اس لیے تمہیں کوشش کرنی ہوگی، بلکہ ہر حالت میں اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں یا کسی جیب میں ہر وقت اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ بس تم پر میری طرف سے یہی سب سے بڑی شرط اور سب سے بڑی پابندی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا ہم اکٹھے مل کر دشمن پجاری کا اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک کہ میں اسے اس کے عصیبی منتروں کے ساتھ جہنم کی آگ میں بسم نہیں کر دیتی۔ حالات نے مجھے ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش میں ضرور کامیاب کرے گا، اور میں اپنی ایمان کی طاقت کے ساتھ بت پرست پجاری رگو کی بدروح کو جہنم کی آگ کے سپرد کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا، تاکہ اس کے بعد اس کی بدروح بنی نوع انسان کو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ روہنی کہنے لگی کہ بدروحوں کی دنیا میں تمہیں بدروحوں کے جس قبیلے میں لے جا رہی ہوں اس پر کالی بدروح کی حکومت ہے، اور کالی بدروح بڑی خونخوار بدروح ہے اور انسانوں کی دشمن ہے۔ اس کے گلے میں انسانی ہڈیوں کی مالائیں ہر وقت پڑی رہتی ہیں۔ ان ہڈیوں میں اتنی شکتی ہے کہ اگر ان میں سے مجھے ایک چھوٹی سی ہڈی بھی مل جائے تو مجھے بڑے دشمن پجاری رگو جتنی طاقت حاصل ہو سکتی ہے، اور میں اس لیے بدروحوں کی دنیا میں جا رہی ہوں کہ کال بدروح کی مالا میں پروئی ہوئی انسانی ہڈیوں کا کوئی مہرہ حاصل کر سکوں، اور تمہیں اپنے ساتھ اس لیے لے جا رہی ہوں کہ تمہیں اپنی سہیلی مالنی کی بدروح سے ملوا دوں، تاکہ اگر زندگی کے کسی لمحے کسی حادثے کی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے تم سے بچھڑ جاؤں تو مالنی کی بدروح تمہیں پجاری رگو کے قاتلانہ حملے اور اس کے خطرناک جادو سے بچا سکے۔ میں نے اس سے مالنی کے بارے میں سوال کیا اور مالنی کی بدروح کیوں بن گئی تھی۔ روہنی کہنے لگی کہ مالنی سے ایک بہت بڑا گناہ، ایک بہت بڑا پاپ ہو گیا تھا، اور جس کی وہ سزا بھگت رہی ہے۔ جب تک اس کی سزا کی مدت پوری نہیں ہو جاتی وہ بدروحی رہے گی، اور وہ میری بڑی پیاری سہیلی تھی۔ جب ہم دونوں زندہ تھیں تو وہ میرے محل میں میرے ساتھ ہی رہا کرتی، اور ہم محل کی چھت پر کھڑے تھے اور آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، بارش رکی ہوئی تھی، اور اپنا ہاتھ مجھے دے دو، اور ہم بدروحوں کی دنیا میں جا رہے ہیں۔ گھبرانا بالکل نہیں، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں نے تمہارے ہاتھ میں تابوت کی انگوٹھی ڈال دی ہے جو تمہیں بدروحوں کے برے اثرات سے محفوظ رکھے گی۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ بالکل نہیں، میں نے جواب دیا، لیکن دل میں ڈر ضرور رہا تھا، اور بدروحوں کی دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر میری روہنی کے ساتھ جانا بہت ضروری تھا، اور یہ ایک طرح سے میری زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ روہنی ہوا میں پرواز کرنے کے لیے بالکل تیار تھی، اور میرا ہاتھ اس کی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اور اس کے ہاتھ کی ٹھنڈی گرفت میرے دل میں مزید خوف پیدا کر رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے ایک ہلکا سا دھچکا لگا، اور جیسے کسی نے مجھے اوپر اٹھا دیا۔
मेरे पांव वीरान किले की छत से 10-15 फुट बुलंद हो गए और फिर मैं रोहिणी के साथ ऊपर ही ऊपर उठता चला गया और यहाँ तक कि हम स्याह बादलों में दाखिल हो गए। स्याह बादलों में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था और सिर्फ ये एहसास था कि रोहिणी मेरे साथ है और मेरा हाथ उसने पकड़ रखा है। और मैं दिल में दुआ मांगने लगा कि या अल्लाह पाक मुझे खैरियत से वापस ले आना और मैं कभी इन खराफात में ना पड़ता, मगर तू जानता है कि मैं मजबूर कर दिया गया हूँ और महज मेरी हमाकत ने मुझे इस अंजाम तक पहुँचा दिया है। ना मैं किले का मर्तबान खोल कर रोहिणी की बहादुरी को आज़ाद करता और ना इस मुसीबत में फंसता, मगर जो हो चुका था उसे मैं वापस नहीं मोड़ सकता और मुझे अब उसका तोड़ करना था ताकि मेरी जान महफूज रह सके और मैं ना हक ना मारा जाऊं। हम स्याह काली घटाओं में से निकलकर सफेद धुंध के बादलों में दाखिल हो गए और मुझे रफ्तार का कोई अंदाजा नहीं था। कभी महसूस होता कि मैं हवा में एक जगह पर मुअल्लक हो गया हूं और कभी लगता कि मैं उस कदर तेज स्पीड के साथ फिजा में परवाज कर रहा हूं कि जैसे बिजली की चमक सफर करती है। और पहले भी मैं रोहिणी के साथ फिजा में उड़ता रहा था और इस उड़ान में मुझे अपने जिस्म का कोई बोझ महसूस हो रहा था, मगर अब मेरे जिस्म का वजन गायब हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं हवा से भी ज्यादा हल्का हो गया हूं और कुछ पता नहीं कि यह कैफियत कितनी देर तक कायम रही। और फिर मेरे जिस्म का वजन वापस आना शुरू हो गया और मैं रोहिणी के साथ बिल्कुल सीध में उड़ने के बजाय नीचे आने लगा। मैंने नीचे नजर डाली और मेरे पाँव के नीचे मुझे जगह जगह स्याह बादलों के पहाड़ नजर आए और ये बादल हरकत करने के बजाय अपनी जगहों पर साकत थे और मुझे रोहिणी की आवाज सुनाई दी। हम बदरूहों की दुनिया की हदूद में दाखिल हो गए हैं और मैं तुम्हें गायब करने लगी हूँ, मगर गायब होने के बाद भी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में ही रहेगा और जब तक कि मैं तुम्हें लेकर अपनी सहेली मालिनी के गार में नहीं पहुंच जाती। अचानक मुझे एक बहुत खफीफ सा झटका लगा और मेरा जिस्म मेरी निगाहों से गायब हो गया। मुझे ना तो अपने बाजू दिखाई दे रहे थे और न जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा नजर आ रहा था। मैं गायब हो चुका था, लेकिन मुझे रोहिणी की हाथ की गिरफ्त बाकायदा महसूस हो रही थी। मेरा जिस्म जरूर गायब हो गया था, मगर जिस्म का एहसास जिंदा था और ये मेरे लिए मेरी जिंदगी का एक अनोखा और दहशतनाक तजर्बा था। कैसी अजीब और डरा देने वाली बात लगती है कि आप सड़क पर चल रहे हों और आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, मगर अपना जिस्म दिखाई नहीं दे रहा। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे और स्याह बादलों के पहाड़ वाज़े होते गए, और ये बादल नहीं थे बल्कि काले स्याह पहाड़ थे जिन पर किसी जगह भी कोई दरख्त नहीं था। हम एक पहाड़ के पास उतर गए और रोहिणी ने मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगी, हम बदरूहों की दुनिया में आ गए हैं और इस ट्याले में मेरी सहेली मालिनी का गार है। रोहिणी ट्याले के ढलान के साथ साथ चल रही थी और अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा परिंदा अपने पर जोर जोर से फड़फड़ाता हुआ मेरे सर के ऊपर से गुजर गया और मैं डर कर एक तरफ हो गया। रोहिणी मुझे देख रही थी और मैं उसे दिखाई दे रहा था और मुझे आसमान की तरफ देखकर रोहिणी ने कहा, घबराओ नहीं, यहाँ बदरूहें इसी तरह दिन रात अज़तराब के हालत में फिजा में भटकती रहती हैं और मेरे शहजादे के ताबूत की अंगूठी की वजह से बदरूहों को तुम्हारी मौजूदगी का एहसास नहीं होगा और वह तुम्हें देख भी नहीं सकती। अगर तुम्हारी उंगली में मेरी दी हुई ताबूत की अंगूठी ना होती तो अब तक बदरूहों ने तुम्हारी तिक्का बोटी कर दी होती। इस वक्त मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ और इंसानों की दुनिया से निकलकर कहाँ आ गया हूँ। ट्याले के ढलान में साथ साथ गारों के दहाने नजर आ रहे थे और हम उन गारों के करीब से गुजरने लगे तो रोहिणी ने सरगोशी में मुझसे कहा, किसी गार में से कोई भी आवाज आए तो तुम हरगिज उसका जवाब मत देना, बिल्कुल खामोश रहना। और मैंने सरगोशी में जवाब दिया, मैं नहीं बोलूंगा। हम पहले गार के सामने से गुजरे तो गार के अंदर से किसी औरत की आवाज आई। वो बैन कर रही थी और बड़ी दर्दनाक आवाज में कह रही थी, मुझे आग लगी हुई है, कोई मेरी आग बुझा दे, मुझे आग लगी हुई है, कोई मेरी आग बुझा दे। हम गार के आगे से गुजर गए और दूसरे गार के पास आए तो अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चा बिलक बिलक रो रहा था और कहे जा रहा था, अम्मी जान, ये लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे इनसे बचा लो और मेरे सर से खून बह रहा है। अम्मी जान, इनसे मुझे बचा लो, तुम कहाँ हो? हम उस गार के आगे से भी गुजर गए और तीसरे गार के सामने से गुजरे तो अंदर से किसी मर्द की भयानक चीख की आवाज आई।
یہ چیخ اتنی ڈراؤنی تھی کہ میرا دل لرز اٹھا اور چیخوں کی مسلسل آوازیں آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کسی کو دہکتے ہوئے انگاروں سے داغ رہا ہو، اور چوتھے گار میں صرف رونے کی درد انگیز آواز آ رہی تھی، اور کوئی انسان ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا اور کہے جا رہا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ پانچویں گار کے قریب پہنچتے ہی روہنی نے مجھے ہاتھ سے ایک طرف کھینچ لیا اور ہم ٹیلے کے ایک بڑے سے پتھر کی اوٹ میں ہو گئے۔ اس غار کے اندر سے کسی خونخوار درندے کی داڑ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی، اور اس کے فوراً ہی بعد غار میں سے ایک بڑے ریچھ کے سائز کا ایک عجیب قسم کا ڈراؤنا درندہ باہر نکلا، اور اس کے منہ میں ایک آدمی کا دھڑ تھا اور جس کو اس نے اپنے نوکیلے دانتوں میں جکڑ رکھا تھا۔ سیاہ رنگ کا خوفناک درندہ بد نصیب انسان کی خون آلود لاش کو اپنے دانتوں میں دبائے چھلانگ لگا کر ٹیلے کی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں روہنی سے پوچھوں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں، کون سی بدروحیں ہیں، اور جن پر خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ روہنی کی بدرو بھی خاموش تھی، اور جب خوفناک درندہ جھاڑیوں کے عقب میں غائب ہو گیا تو روہنی نے مجھے لے کر آگے چل پڑی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، اور آگے ٹیلے کی سیاہ دیوار آ گئی، اور اس کے بعد پھر تاریک غار آ گیا۔ اس غار کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اندر ایک نگاہ ڈالی تو میری روح کانپ اٹھی۔ غار کے دہانے کے پاس ہی ایک عورت غار کی چھت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی، اور اس کے جسم کے ساتھ سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ روہنی میرا ہاتھ کھینچ کر جلدی سے آگے لے گئی۔ ایک غار میں سیاہ کالا دھواں نکل رہا تھا، اور اندر سے ایسی گھٹی ہوئی آواز آ رہی تھی، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو۔ ہم وہاں سے بھی آگے نکل گئے، اور آگے ایک چھوٹا سا زینہ تھا، اور ہم اس پار سے ہو کر اوپر آ گئے تو وہاں بھی ایک غار تھا، اور اس غار میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ روہنی نے میرے قریب ہو کر سرگوشی میں کہا، اور یہ میری سہیلی مالنی کا غار ہے، اور ڈرنا نہیں، ہم اندر جا رہے ہیں۔ غار میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے ہم غار میں آگے جا رہے تھے اور اندھیرا اپنے آپ کم ہوتا گیا، حالانکہ وہاں کوئی موم بتی تک روشن نہ تھی۔ ہم غار کے وسط میں آ گئے، اور جہاں ایک چھوٹا سا دالان تھا، اور دالان میں 3 سیاہ پتھر کے ستون تھے۔ ایک ستون کے پاس چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا، اور چبوترے پر اینٹوں کے 4 تھڑے تھے، اور جیسے کسی کے بیٹھنے کے لیے بنائے گئے ہوں۔ غار خالی تھا، اور روہنی دھیمی آواز میں کہنے لگی، مالنی باہر گئی ہوئی ہے، اور ابھی آ جائے گی، اور اس میں اتنی شکتی ہے کہ وہ تمہیں غیبی حالت میں بھی دیکھ لے گی۔ یاد رکھنا کہ جب تک وہ تم سے کچھ نہ پوچھے تم ہرگز نہیں بولو گے۔ اور ابھی ہم دالان میں ایک ستون کے پاس کھڑے ہی تھے کہ کسی پرندے کے پروں کی پھڑ پھڑانے کی آواز سنائی دی۔ روہنی نے کہا کہ مالنی میری سہیلی آ گئی ہے، اور پروں کی پھڑپڑاہٹ اور بلند ہو گئی، اور اتنے میں ایک بڑے سائز کی چمگادڑ نمودار ہوئی۔ اس نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے، اور اس کی حلق سے سیٹی کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ چمگادڑ نے دالان میں ایک چکر لگایا، اور پھر روہنی جہاں کھڑی ہوئی تھی وہاں زمین پر اتر گئی۔ زمین پر اترتے ہی وہ ایک نوجوان عورت کے روپ میں ظاہر ہو گئی، اور روہنی کو سامنے دیکھ کر وہ بڑی خوش ہوئی اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، روہنی، بڑے دنوں کے بعد تم سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ہماری بدروحوں کی دنیا سے تمہارا زیادہ تعلق نہیں۔ ہم تو یہاں بدروحیں بن کر اپنے برے کرموں کی سزا بھگت رہے ہیں، لیکن تمہارے کرم دنیا میں اچھے تھے، اور تم اپنے چچا دشمن پجاری رگو کی وجہ سے ایک اچھی بدروح کی شکل میں پھٹک رہی ہو۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا، اور میں غائب تھا، مگر روہنی کی سہیلی مالنی مجھے دیکھ رہی تھی، اور اس نے روہنی سے پوچھا، یہ انسان کون ہے، اور اسے تم اپنے ساتھ ہماری دنیا میں کیوں لائی ہو، اور یہ تو ابھی تک زندہ ہے؟ روہنی نے کہا، مالنی، میں یہی سب کچھ بتانے کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ مالنی کی بدروح اینٹوں کے تھڑے پر بیٹھ گئی، اور اس کے سامنے والے تھڑوں پر میں اور روہنی بیٹھ گئے، اور اس کے بعد روہنی نے اپنی سہیلی مالنی کو شروع سے لے کر آخر تک وہ ساری کہانی بیان کر دی جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ بدروح مالنی بڑے غور سے روہنی کی باتیں سن رہی تھی، اور جب روہنی نے اپنی داستان ختم کی تو مالنی نے کہا، روہنی، اس انسان نے تمہیں راکشس پجاری رگو کی قیاد سے آزاد کر کے تمہارے ساتھ بلائی کی ہے، اور ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں۔ ہم ہر طرح سے تمہاری اور اس نیک دل انسان کی مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن تم بھی جانتی ہو کہ یہ کام بڑا خطرناک بھی ہے۔ پجاری رگو کی بدروح اپنی بدروحوں کے قبیلے کی سردار ہے،
और हमारे कबीले के सरदार काली बदरू है। रघु के बड़े अच्छे तलकात हैं और उन दोनों में किसी को भी अगर ये मालूम हो गया कि तुम लोग इंसानों की दुनिया से पुजारी रघु को हमेशा के लिए भस्म करने के सिलसिले में मेरे पास आए हो और तुम्हें उसके तिलस्म की तोड़ की तलाश है, तो इस इंसान की जान खतरे में होगी। हम दोनों बदरूहें हैं और हम पहले ही मर चुकी हैं, लेकिन बदरूहों की भी मौत होती है और ये बड़ी अजियतनाक मौत होती है। इंसान तो मरकर जिस्मानी तकलीफ से निजात पा जाता है, लेकिन बदरूहों की मौत के बाद उनका ऐसा अजियतनाक सिलसिला शुरू हो जाता है जो कभी खत्म नहीं होता। रोहिणी ने कहा कि मालिनी, मुझे इन सारी बातों का एहसास है और मैं बड़ी एहतियात से काम ले रही हूँ और एक ऐसे रास्ते से उड़कर आई हूँ जहाँ सवाए खिला के और कुछ नहीं था, और सिर्फ इसलिए कि कहीं पुजारी रघु या तुम्हारी खौनखवार सरदारनी काली को हमारे यहाँ आने का पता ना चल जाए। बदरू मालिनी कहने लगी कि कबीले की सरदारनी काली बदरू की ताकत का तुम्हें इल्म नहीं। दूसरी दुनिया और खास तौर पर इंसानों की दुनिया का एक जर्रा भी उड़कर यहाँ आ जाए तो उसे खबर हो जाती है, और ये तुम्हारी अक्लमंदी है कि तुम अपने साथी को, जो तुम्हारे मरे हुए महबूब का हम शक्ल है, आसमान के ऐसे रास्तों से लेकर आई हो कि काली बदरू को अभी तक तुम्हारे और तुम्हारे साथी की बदरूहों की दुनिया में दाखिल होने की खबर नहीं हुई। मालिनी, तुम मेरे सबसे प्यारी, बल्कि जिंदगी में और मरने के बाद भी एक ही सहेली हो और मेरी हमराज। मैंने ये रात तुम्हें खोल कर बता दिया है कि मेरी निजात और मेरे मुर्दा महबूब की रूह की तस्कीन सिर्फ उसी एक बात में है कि किसी तरह मैं अपने दुश्मन पुजारी रघु से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लूं। वो मेरी तलाश में है और मेरी हर कीमत पर एक बार फिर अपने कब्जे में करना चाहता है, क्योंकि उसकी मुक्ति और उसकी निजात भी उसी में है कि मैं हमेशा के लिए उसके कब्जे में चले जाऊं, ताकि वो मुझे 100 बरस तक किसी मर्तबान में दफन रखने के बाद मेरी आत्मा को अपने में जज़ब करके फिर से इस दुनिया में जिंदा इंसान का जन्म लेकर ज़ाहिर हो जाए। मेरी आत्मा को अपने अंदर जज़ब कर लेने के बाद उसमें इतनी शक्ति, इतनी ताकत आ जाएगी कि दुनिया की बड़ी से बड़ी तिलस्मी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी, और वह जिसे चाहेगा अपनी मर्जी से कत्ल करेगा या उसे अपना गुलाम बना सकेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, और इंसानों की दुनिया में अमन और राहत और मोहब्बत और प्यार की दुनिया है, और ये राक्षस पुजारी रघु अगर तुम्हारी आत्मा को अपने अंदर जज़ब कर ले, दोबारा दुनिया में वापस आ गया, तो दुनिया के अमन पसंद बेगुनाह लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए मैं तुम्हारी मदद लेने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, और मैं तुम्हारी निजात और इंसानों की दुनिया की शांति और अमन के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तब रोहिणी ने मालिनी से कहा, उसके लिए मुझे एक ऐसी शय की जरूरत है, मुझे सिर्फ तुम्हारी बदरूहों की दुनिया और खास तौर पर तुम्हारे कबीले में से ही मिल सकती है। मुझे बता दो कौन सी शय है, मालिनी ने पूछा। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे कबीले की सरदारनी बदरू काली के गले में इंसानी हड्डियों के मोहरों की मालाएं होती हैं, और तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि उस माला की हड्डियों के मोहरों में कितनी ताकत छुपी हुई है। और मालिनी, अगर मुझे इस सरदारनी का काली बदरू की इस माला में से किसी भी इंसानी हड्डी का एक मोहरा मिल जाए, तो मेरे पास इतनी ताकत हो जाएगी कि मैं ना सिर्फ ये कि इंसानों का और अपना दुश्मन पुजारी रघुकार का मुकाबला कर सकूंगी, बल्कि उससे अग्नि देवी की चिता की आग में जलाकर हमेशा के लिए भस्म कर दूंगी। मालिनी ये सुनकर जैसे एक बार सहम सी गई, और मैंने देखा कि उसके चेहरे पर परेशानी के असरात जाहिर होने लगे। उसने कोई जवाब न दिया, और उसे खामोश देखकर रोहिणी ने कहा, मुझे एहसास है कि तुम्हें एक ऐसे काम के लिए कह रही हूँ और जिसमें तुम्हारी जान को भी खतरा है, और ये मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम है, मगर मालिनी ये इंसानियत की भलाई का काम भी है। हो सकता है कि नेकी के इस काम के बदले तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा भी भगवान माफ कर दे और तुम्हारी रूह को भी निजात मिल जाए, और तुम बदरूहों की दुनिया से निकलकर आकाश की बुलंदियों में देवताओं की दुनिया में वापस चले जाओ। क्योंकि जब तक मेरे अंदर पुजारी रघु जितनी या उससे बढ़कर शक्ति नहीं पैदा होती, तब तक मेरी रूह, जिसको आकाश की बुलंदियों पर जाना था, आसमानों और जमीन के दरमियान हमेशा भड़कती फिरती रहेगी, और मेरा महबूब शहजादे की रूह भी स्वर्ग में बेचैन रहेगी। मालिनी की बदरू ने आखिर अपनी जुबान खोली और कहने लगी, ये काम कितना मुश्किल
बल्कि एक तरह से नामुमकिन है और तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। काली बदरू के गले की माला में से इंसानी हड्डी का मोहरा उतारना तो बात की बात है, और उसकी माला का कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। काली बदरू सो भी रही होती है तो 4 खौनख्वार बदरू हैं, नंगी तलवारें हाथ में लिए उसके इर्द गिर्द पहरा देती हैं, और जहां वो सो रही होती है वहां कोई मक्खी भी दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकती। रोहिणी ने कहा, लेकिन मालिनी हमें ये काम हर हालत में करना है, और अगर काली बदरू का मोहरा मुझे मिल गया तो समझ लो कि मेरी तो निजात होगी ही, लेकिन उसके साथ ही इंसानों की दुनिया के करोड़ों बेगुनाह इंसान पुजारी रघु की लाई हुई तबाही से महफूज हो जाएंगे। बदरू मालिनी मुझे महसूस हो रहा था कि वो किसी गहरी सोच में है और रोहिणी की मदद करना चाहती है और इंसानों की दुनिया को तबाही से बचाना चाहती है, मगर उसे कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी और जिस पर चलकर वो अपने कबीले की खौनख्वार सरदारनी काली बदरू की माला का मोहरा हासिल कर सके। अचानक बदरू मालिनी ने मेरी तरफ देखा और उसकी सुर्ख आंखों में मुझे बड़ी खौफनाक सी चमक दिखाई दी, और फिर उसने रोहिणी से मुखातब होकर कहा, रोहिणी एक तरीका हो सकता है। वो क्या? और रोहिणी ने बेताब होकर पूछा। बदरू मालिनी ने कहा, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि एक मरे हुए आदमी से मुकाबले में एक जिंदा इंसान ज्यादा ताकत और काबिलियत रखता है, और ये अलग बात है कि जिंदा इंसान को अपनी छुपी हुई ताकत का एहसास ना हो। रोहिणी ने कहा, और मैं जानती हूँ, मगर वो तरीका कौन सा है जिस पर अमल करके मैं काली बदरू का मोहरा हासिल करने में कामयाब हो सकती हूँ। बदरू मालिनी कहने लगी कि तुम्हारा साथी इंसान और तुम्हारे महबूब और स्वर्गबाज शहजादे शेरवान के हम शक्ल से ये काम लिया जा सकता है। और ये सुनते ही मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे रोहिणी ने बुलाए बगैर कुछ बोलने से मना कर दिया था, लेकिन मैं घबरा रहा था।